Question number 3, exercise 1A. A is lying in the second quadrant and 3 10A plus 4 is equal to 0. So therefore 10A is equal to minus 4 by 3. And they are asking then find the value of twice of cot A. Twice of cot A minus 5 cos A plus sin A. So as we know, if this is the case, then we can say that 10 is 4 by 3. It means this is 4, this is 3. So this must be 5. So twice cot A will become 3 by 4 with a negative sign because A is in the second quadrant minus, yeah, cos will become 3 by 5 with a negative sign and sin will become 4 by 5 with a positive sign. ये वैल्यू हो गई तीनों की. रेस्ट आई एम राइटिंग एज इट इज 2 as it is minus 5 as it is plus as it is. No, I think you can calculate this. जो भी वैल्यू आएगी that would be your final answer. करेक्ट है जिसका भी डाउट है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4. If the perimeter of the sector of a circle is m times the radius of the circle, so perimeter is equal to m times of the radius, m into radius, perimeter of a sector. तो सेक्टर का पैरामीटर का मतलब क्या हो गया? सपोज इफ दिस इज अ सर्कल and this is sector AB, then perimeter is equal to the arc ka length AB and then this radius R and this R. So perimeter of the circle will become theta R plus 2R is equal to MR. Right? What is this? Length of arc length of arc AB. ये तो I hope आपको पता है सबको. If this angle is theta, then, and what they are asking is then the angle subtended by the sector at the center of the circle. मतलब they are asking about the theta. Therefore theta R is equal to MR minus 2R. You can easily see this that we can cancel R. So we are left with theta is equal to m minus 2 of radian. ठीक है. तो between question 1 to question 5 doubt question number 3 and question number 4. Next, ping me the question between 6 and 10. Questions between 6 and 10. बस एक सेकेंड रुको, अभी टाइप मत करो. बिटवीन क्वेश्चन नंबर 6. यार लेट कौन ज्वाइन कर रहे हैं यार?
आई होप आप लोगों ने सॉल्यूशन देखे हैं सबने। तो आई एम स्टार्टिंग विथ क्वेश्चन नंबर 6। एक बार क्वेश्चन नंबर 4 वापस बता रहा हूं। व्हाट इज गिवन टू मी इज द पैरामीटर ऑफ ए सेक्टर विच इज इक्वल टू द पैरामीटर ऑफ सेक्टर। This parameter of sector is equal to the m times of the radius, right? And what is perimeter of sector? Perimeter of the sector would be this plus this plus this. So this arc length theta r is the arc length, and this 2r is this radius r plus this r plus this r. So this is equal to mr. r cancel हो गया, थीटा की वैल्यू निकल गई डायरेक्टली। ठीक है, जो जो भी पूछ रहा था। बेटा ये सारे मत करो आप लोग, ऐसा मत करो। आई होप आप लोगों ने सॉल्यूशंस देखे हैं सबने। कभी भी इफ यू आर कमिंग टू डाउट लेक्चर्स तो आपको जो बुकलेट के सॉल्यूशन भेजे गए हैं वो देख के आओ, वो देख लो पहले। क्योंकि क्या होता है कि आप जितना खुद से समझोगे वो ज्यादा अच्छा रहेगा। 6 है, इफ अ सेमी पैरामीटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस आर इक्वल्स द पैरामीटर ऑफ ए सेक्टर ऑफ द सेम सर्कल सब्टेंडिंग एंगल थीटा एट द सेंटर। तो कुछ उस टाइप का सीन बना रहा है कि अगर ये सर्कल है और ये थीटा एंगल सब्सटेंड करने वाला आर्क है, तो वो ये ऐसा बोल रहा है क्वेश्चन के, द सेमी पेरीमीटर is equal to sector same circle subtending angle theta at the center. Perimeter of a sector is equal to perimeter of a sector. Perimeter of a sector with subtend angle theta, then theta पूछ रहा है वो r के टर्म में क्या आ रहा है। तो सेमी पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल कितना होता है भाई? सिंपल है, सेमी पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल ये वाला पार्ट जो है हमारे पास, दिस पार्ट इज इक्वल टू 2 पाई आर। तो उसका क्या होता है पेरीमीटर, 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, दिस इक्वल टू जो फॉर्मूला हमने पहले लिखा था थीटा आर प्लस 2r। आई होप ये क्लियरिटी है तुम लोगों को, राइट? आप लोगों को यहाँ पे ही लिख चुका हूँ मैं थीटा आर प्लस 2r। अब बस ये 2 से 2 को उड़ा दो और फिर ये जो r है जो चाहिए मिल जाएगा। आपको क्या चाहिए था? थीटा की वैल्यू पूछ रहा है वो। थीटा इक्वल टू पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास? थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस 2। So therefore option A is wrong. It is pi plus 2. That's why option A is wrong. Area of the mentioned sector. So area of sector is equal to होता है 1/2 theta r square. And area is theta is pi minus 2. तो pi minus 2/2 r square. Hence this option B is also wrong. The length of the corresponding arc. लेंथ ऑफ आर्क कितना होता है? लेंथ ऑफ आर्क होता है थीटा आर। थीटा कितना निकाल के रखा है आपने? पाई माइनस 2। तो पाई माइनस 2 इंटू आर। तो हेंस ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, दिस वन लेंथ ऑफ द आर्क। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो थोड़ा सा लेंदी है। अगर कन्वेंशन मेथड से जाएंगे हम तो आई विल गिव यू अ शॉर्ट मेथड which you can use in trigonometry in objective exams. ठीक है, विच वन इज नॉट इक्वल टू, विच वन इज नॉट इक्वल टू, है ना? तो ऑप्शन लिख देता हूं मैं यहां पे। ऑप्शन ए इज cosec थीटा प्लस cot थीटा। ऑप्शन बी इज cosec थीटा प्लस 1/cot थीटा। ऑप्शन सी इज
sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos थीटा, एंड ऑप्शन डी इज 1 प्लस cos थीटा। ठीक है, अब अगर आप थोड़ा सा देखोगे इसके अंदर, तो मैं क्या करता हूँ, थीटा इज इक्वल टू पुट कर देता हूँ, कॉट और कॉसेक है ना, थीटा इज इक्वल टू पुट कर देता हूँ टू 30 डिग्री पे √3 होगा ना कॉट। कॉट और कोसेक दोनों सिस्टमेटिक है। मैं थीटा इज इक्वल टू पुट कर देता हूँ, पहला केस क्या करता हूँ मैं, नाइन्टी डिग्री पुट कर देता हूँ। थीटा इक्वल टू 90 डिग्री में जो आपके पास सॉल्यूशन है, जो ओरिजिनल क्वेश्चन है, ये कितना आएगा, कॉट ऑफ 90 डिग्री कितना होता है, कॉट ऑफ 90 डिग्री इज 0, कोसेक ऑफ 90 डिग्री इज 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय, अच्छा डिफाइन ही नहीं हो रहा है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री वी कैन नॉट पुट, पुट थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री या 60 डिग्री, 30 डिग्री पुट करते हैं, पुट थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, व्हाट यू विल गेट, 30 डिग्री पुट करेंगे तो कॉट 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3, कॉसेक की होती है 2, ठीक है, और कॉट थीटा की वैल्यू अगेन √3 माइनस 2, so the value is √3 plus 1 divided by √3 minus 1। ठीक है, अब सारे ऑप्शन में पुट करके देख लेते हैं। तो ए ऑप्शन में पुट करके देखेंगे तो कितनी आएगी, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, कॉसेक 30 डिग्री 2 प्लस √3, तो इज दिस इक्वल टू 2 प्लस √3, क्या ये 2 प्लस √3 के बराबर है, तो इसको देखने के लिए क्या करता हूँ, रेशनलाइज कर देता हूँ, और इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे को मिलेगा ऊपर √3 प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय √3 का स्क्वायर माइनस 1, which will say us 3 plus 1 plus 2 √3, तो फाइनली दिस इज 2 प्लस √3। और ये से आपको डायरेक्टली ये चीज पता भी होना चाहिए कि ये जो है ना, ये जो वैल्यू आ रही है वो 1075 डिग्री की वैल्यू आ रही है, 1075 √3 प्लस 1 बाय √3 माइनस 1 होता है, जिसको रेशनलाइज करके हम ये भी आते हैं। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट डेफिनेटली। ऑप्शन बी चेक करते हैं, बी आ रहा है आपके पास 2 प्लस 1 बाय √3 विच इज इक्वल टू 3 बाय √3। ऑप्शन सी कितना आ रहा है, 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा कितना होता है √3 बाय, सॉरी मैंने कुछ गलत लिखा, दिस इज 1 बाय 2। कैन वी सिंप्लीफाई दिस, दिस विल बी कन्वर्टेड टू 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस √3, और इसको रेशनलाइज करोगे तो 2 प्लस √3 डिवाइडेड बाय 1, और ऑप्शन डी जब आप देखोगे तो दिस इज 1 प्लस √3 बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 बाय 2, यू आर लेफ्ट विथ 2 प्लस √3। तो देखो ये वाला ऑप्शन इसके साथ मैच हो रहा है, ये ऑप्शन भी मैच हो रहा है, ये ऑप्शन भी मैच हो रहा है, और ये ऑप्शन भी हो रहा है, बस ये ऑप्शन मैच नहीं हो रहा, इसीलिए योर आंसर वुड बी ऑप्शन बी। क्वेश्चन है विच वन इज नॉट मैचिंग, तो कौन सा नहीं मैच कर रहा है, ऑप्शन बी इज नॉट मैचिंग। तो कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए तो शॉर्टकट में आप पुट कर सकते हो कोई भी एंगल एंड यू कैन चेक इट। 90 क्यों नहीं पुट किया, 90 इसीलिए पुट नहीं किया, 90 इसीलिए पुट नहीं किया क्योंकि 90 डिग्री पे एक्सप्रेशन डिफाइन नहीं हो रहा था, डिनोमिनेटर 0 आ रहा था, एंड आई डू नॉट वांट के मैथ्स में डिनोमिनेटर 0 आए। अयान, अयान सर सी वाले ऑप्शन में क्या किया आपने, सी वाले में भी वैल्यू पुट करी 30 डिग्री की और उसको रेशनलाइज कर दिया। तो वो तो 1 अपॉन, अच्छा हाँ हाँ ठीक है, रैशनलाइज किया। हाँ सर और एक और चीज, एक मिनट हाँ
और जो राइट साइड में सबसे पहले अपन ने किया ना ब्लू कलर में, उसका सेकंड लास्ट स्टेप के बाद क्या किया आपने? ये वाला हाँ यहाँ रेशनलाइज्ड इट ना, √3 + 1 से सेकंड मल्टीप्लाई डिवाइड लास्ट, कर दिया। तो ये बस सेकंड लास्ट। यहाँ पे 2 आएगा, ऊपर से 2 कॉमन लेके कैंसिल होके ये आ जाएगा। अच्छा हाँ ठीक है सर, थैंक यू। यू कैन पुट 45 डिग्री बेटा, कंपोनेंडो डिविडेंडो जब लगाया जाता है जब कोई इक्वेशन होती है। ये छोटी छोटी सी चीजें हैं बट लॉजिकली हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो यू अप्लाई व्हेन द सिचुएशन इज लाइक दिस, इज इक्वल टू C+C/D, is equal to, equation is involved in it here, no equation is involved here, only expression is there. In expression you cannot apply componendo and dividendo, that is mathematically wrong. You can take 60 degree instead of 30 degree, any angle you want to take you can take, but make sure that the expression is defined. और बाकी आपको नॉर्मल मेथड से तो आपको सॉल्यूशन बुकलेट में दिया ही हुआ है, तो आप उसको चेक कर सकते हो। 8th क्वेश्चन, ये तो अपनी उसमें है यार, इन चैप्टर में भी, इन चैप्टर डिस्कस हो गई है ना आप लोगों की। tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री till tan 89 डिग्री। सो tan 1 डिग्री इंटू tan 89 डिग्री की जो वैल्यू होती है ना, वो होती है 1, राइट? ये याद होना चाहिए आपको। और सिमिलरली tan 2 डिग्री इंटू tan 88 डिग्री कितना होता है? ये भी होता है 1। कैसे होता है तो मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ आपको। दिस कैन बी रिटन एज cot 2 डिग्री एंड दिस इज tan 2 डिग्री, एंड tan थीटा इंटू cot थीटा होता है 1, दैट्स वाई 1 होगी। अब cot 2 कैसे लिख रहे हैं तो ये आप निकाल ही सकते हो। 88 को 90 माइनस थीटा लिखो तो tan 90 माइनस थीटा इज cot थीटा करके। तो ये जो क्वेश्चन है ओरिजिनल, इसमें पेयर अप अगर मैं करूंगा तो कुछ इस टाइप से पेयर हो जाएंगे। tan 1 डिग्री को मैं tan 89 के साथ पेयर कर दूंगा, जिसका मल्टीप्लीकेशन मेरे पास 1 हो जाएगा। सिमिलरली tan 2 को पेयर कर दूंगा मैं किसके साथ? tan 88 डिग्री के साथ। एंड कहाँ तक जाता जाएगा तो ये आपको समझ में आ ही गया होगा, tan 44 तक जाएगा और उसके साथ आएगा tan 46 डिग्री, और एक इकलौता टर्म बच जाएगा जो कि होगा tan 45 डिग्री। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब क्यों बचेगा, कैसे बचेगा, आपने शायद 1A में किया होगा, बट यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं वो 89 टर्म्स हैं, 89 टर्म्स। तो इसको कुछ इस तरीके से आप देखो, 88 + 1 टर्म, तो दिस 88 टर्म विल मेक 44 पेयर्स, एंड ये जो 1 है बेचारा अकेला बच जाएगा। तो ये 1 टर्म जो बची ना वो ये बची, और ये 44 पेयर बचे ना, दिस इज फर्स्ट पेयर, सेकेंड पेयर, 44th पेयर, दैट यू कैन इजिली डिटरमाइन दैट 1 डिग्री 2 डिग्री से 44 डिग्री तक ले गए। तो यहाँ दिख ही रहा है आपको, हर एक चीज 1 है तो 1 इंटू 1 इंटू 1, और बेचारा ये जो 1045 डिग्री है ये भी 1 ही है, तो सब कुछ 1 है, तो भैया 1 ही आंसर आना है। क्वेश्चन नंबर 9, cos of π/2 minus x into cos of 3π/2 3π/2 plus x minus cos of pi minus x into cos of 2 pi minus x। हाँ 25 तक भी हो गया तो वो भी बड़ी बात हो जाएगी मेरे हिसाब से, है ना। 25 तक वी आर ट्राइंग टू डिस्कस। तो cos π/2 माइनस थीटा होता है भैया sin x, cos 3π/2 प्लस x होता है sin x, माइनस cos pi माइनस x होता है माइनस cos x, एंड दिस इज प्लस cos x। तो फाइनली दिस इज sin स्क्वायर x, दिस इज माइनस माइनस cos स्क्वायर x। डन है? जिसका भी डाउट था भाई लोग, एलाइड एंगल्स लगाने हैं यार, कुछ डाउट है तो पूछते हैं जाना, है ना। क्वेश्चन नंबर 10, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 1 एंड साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना होगा ये, तो आई विल स्क्वायर दिस,
I will square the equation. What I will get is sin theta minus cos theta. Therefore, this is sin square theta cos square theta minus 2 sin theta cos theta equal to 1. So this is 1 minus 2 sin theta cos theta. ये 1 से 1 उड़ गया, 2 sin थीटा cos थीटा बच गया 0, sin थीटा cos थीटा हो जाएगा 0. ठीक है, जिसका भी डाउट था भाई. क्वेश्चन 11 to 15, 12, 14, 15. So I'm starting with question number 12. Question number 12 says that sin x plus cosec x, sin x, and you need to find out the value of something sin raised to the power nx. So इसको मैं क्या करता हूँ, साइन को साइन ही लिखे रहने देता हूँ, कॉसेक को 1 बाय साइन लिख देता हूँ. लिख सकता हूँ. क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा या एलसीएम लूंगा पहले, तो 1 बाय साइन, this sin square plus 1 is equal to 2 sin, and sin square minus 2 sin plus 1 equal to 0. I think you can factorize it. ये कर सकते हो ना फैक्टराइजेशन तो क्वाड्रेटिक का. कोई डाउट इसमें? अगर sin x अगर 1 है तो cosec x भी क्या है, 1. तो अब ये जिसकी वैल्यू आपको निकालनी है 1 रेज़ टू द पावर n प्लस 1 रेज़ टू द पावर n कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1 विच इज 2. योर आंसर इज 2. अगर यहाँ n की जगह 10 देके रखते, 15 देके रखते, 100 देके रखते, 1000 देके रखते, -100 देके रखते, हर केस में आंसर 2 ही आता. क्लियर है या किसी को डाउट है? क्वाड्रेटिक कैसे सॉल्व करी? दिस इज व्हाट इज दिस इज कॉल्ड द फैक्टराइजेशन. क्या होगा आपने क्या, कौन सा पार्ट समझ में नहीं आया इसमें बेटा? व्हाट आई डिड इज कॉसेक की जगह 1 बाय साइन लिखा है मैंने, कुछ नहीं लिखा. एलसीएम लिया है, साइन साइन स्क्वायर हो गया प्लस 1 बाय साइन कॉस. साइन को मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 साइन को उधर ले गया, देन आई फैक्टराइज्ड इट. मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बोल सकते हो या जैसा भी आपको समझना है, फैक्टराइजेशन जैसे भी करते हैं हम लोग. तो साइन माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 0. अब साइन माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या होता है, साइन एक्स इक्वल टू 1, जब ये पॉसिबल है. जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप करते थे ना, वही है. यस अयान बोलो. सर वो क्वाड्रेटिक वाला पार्ट समझा, लेकिन वो अपन वो n का पावर फिर कंसिडर ही नहीं करेंगे जब सॉल्व कर रहे तब. तो 1 की पावर तो कुछ भी डालेगा तो क्या आएगा, 1 की पावर 100 कितना आता है? नहीं, 1 ही आएगा. तो फिर n कुछ भी हो, डजंट मैटर, इसकी वैल्यू तो 1 ही आएगी, इसकी वैल्यू भी 1 ही आएगी. क्लियर? 1 की पावर n प्लस 1 की पावर n इज ऑलवेज 2, नॉट 2 रेज टू द पावर n. गलती मत करना भाई. ये 1 की पावर आप कुछ भी डाल दो, 100, 200, 300 कुछ भी डाल दो, ये n कुछ भी होने तो डजंट मैटर, आंसर तो 1 ही आएगा ना भाई. 1 की पावर कुछ भी तो 1 ही आएगा. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14. So question number 14 is A is equal to 130 degree, and they are asking us that find the sine of x sin A plus cos A. तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, साइन 130 डिग्री
प्लस कॉस 130 डिग्री और साइन ऑफ 90 डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस कॉस ऑफ 90 डिग्री प्लस 40 डिग्री। तो साइन 90 प्लस थीटा होता है प्लस कॉस थीटा, तो प्लस कॉस 40 डिग्री एंड दिस इज माइनस साइन 40 डिग्री। अब मेरे को बताओ तो 45 डिग्री तक कौन बड़ा होता है? So this one is greater than this one. Therefore the expression का साइन क्या आएगा? नेगेटिव। Therefore x is less than 0. साइन 40 और कॉस 40 में तो बताया 45 डिग्री तक कॉस बड़ा होता है, साइन छोटा होता है। और अदरवाइज आपने सर ने मॉड वाला पार्ट जो तुमको पढ़ाया होगा अभी, जो शायद आप ग्रुप में डिस्कस कर रहे थे कि डिस्कस नहीं हुआ, बट उस मॉड वाले में सर ने आपको ये बना के बताया होगा। बताया होगा क्या? बताया ही है कि कौन कहाँ पे क्या पॉजिटिव होता है इस पूरे जोन में। यहाँ पे ये पूरे में ये याद है नहीं याद है, या ये नहीं बता रहा मैं अभी, फिर ये बाद में ही आप डिस्कस करो। कुछ डाउट है तो मेरे से पूछो बेटा इसमें कि नेगेटिव क्यों आएगा। इफ यू आर नॉट एबल टू कनेक्ट इट लेट मी नो। जैसे सर ने कराया है इसीलिए मैं उसके डीप में इसमें नहीं घुस रहा अभी। फिर इट विल बी पॉजिटिव, करेक्ट, करेक्ट लिख दिया। कॉस बड़ा होता है ना, टिल 45 कॉस इज ग्रेटर देन 0। गुड। 0 डिग्री टू 40 डिग्री 45 डिग्री cos is greater than sin in the first quadrant. अभी ठीक है, ये तो पता है। ग्राफ 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 हुए ना, ग्राफ में देखो ये साइन थीटा का ग्राफ होता है और ये कॉस थीटा का ग्राफ होता है, और ये वाला जो पॉइंट होता है ये 45 डिग्री होता है। एक्स ग्रेटर देन 0 ही है बेटा, ये होता है 45 डिग्री। तो टिल 45 डिग्री दिस कॉस इज ग्रेटर देन साइन। ठीक है, तो कॉस इज ग्रेटर देन साइन, दैट्स व्हाई आंसर इज पॉजिटिव। अभी क्लियर है सबको? हाउ तो ये तो किया होगा बेटा, ऐसा मत करो। ग्राफिकली समझ में आ गया अभी? Any issue? If you have issue, you can ping me. इन चैप्टर 1 में क्वेश्चन नंबर 25 है आई थिंक, जिसमें 4 क्वेश्चन ऐसे देखे रखे होंगे आप। क्वेश्चन नंबर 15, cos 17 डिग्री प्लस साइन 17 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 17 माइनस साइन 17 डिग्री। ये तो आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए बेटा, ये एक फॉर्मूला मान लो या जो भी मान लो। साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 10 ऑफ 45 डिग्री प्लस थीटा होता है भाई लोग, ये याद रखना। नहीं याद है तो चलो, ये नहीं याद है तो आपको ये याद होगा, 1 प्लस टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 10 ऑफ 45 डिग्री प्लस थीटा, बोथ आर सेम। अब क्यों सेम है तो कन्वर्ट कर सकते हो आप इसमें। तो फाइनली जो आपकी ये दुनियादारी चल रही है, ये डायरेक्टली आपके पास 10 ऑफ 45 डिग्री प्लस 17 डिग्री नजर आएगा, विच इज नथिंग बट विच इज 10 ऑफ कितना हो गया 62 डिग्री। आई थिंक ऑप्शन मैच हो जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 16 टू
20, 50 तक नहीं बेटा, 25 तक डिस्कस करने वाला हूँ ना मैं, सर ने डाला तो सही अभी। 17, 19, 20, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20। आगे तुम सारे ही करवाते हो यार एक एक करके, हाँ। 16, फिर अब देखोगे कौन सा बाकी है, 18 बाकी है, चलो 18 भी दे देता हूँ। चलो ये 18 भी आ ही गया। चलो क्वेश्चन नंबर 16 की डिस्कस करेंगे पहले। क्वेश्चन नंबर 16 इज टेन 75 डिग्री माइनस कॉट 75 डिग्री। ये क्वेश्चन पूछ रहे हो बेटा, मत पूछो, ऐसा मत करो, खुद के साथ नाइंसाफी कर रहे हो आप लोग। अगर ये क्वेश्चन पूछ रहे हो तो ये तो समझ में आ रहा है, कॉट 75 10 15 आपको वैल्यू याद करने को बोली है। ये वैल्यूज याद होनी चाहिए आपको, पूछना नहीं है अब ये, ठीक है। चलो 16 के बाद कौन सा पूछोगे, 17 भी पूछोगे? कॉस स्क्वायर अल्फा, आपके असाइनमेंट में क्वेश्चन कंपाउंड एंगल या फैक्टराइजेशन डिफैक्टराइजेशन में लास्ट 2 क्वेश्चन इज ऑफ द सेम पैटर्न जो असाइनमेंट आपको मिला है उसमें। अल्फा प्लस 120 डिग्री सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, फैक्टराइजेशन वाला एक असाइनमेंट है उसमें। तो अब इसके लिए एक फॉर्मूला याद रखना है, कौन सा याद करना है? कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2, 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाय 2। So the original question will convert it to 1 plus cos of 2 alpha by 2 plus 1 plus cos of 2 alpha plus 240 डिग्री, 2 को मल्टीप्लाई कर दिया भैया अंदर, द होल डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 प्लस कॉस ऑफ 2 अल्फा माइनस 240 डिग्री डिवाइडेड बाई 2। यहाँ तक क्लियर है? फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, कुछ भी नया नहीं किया। कौन सा फॉर्मूला? तो ये फॉर्मूला भी लिख दिया है यहाँ पे। अब यहाँ पे थोड़ा सा नजर डाल लो, चलो नजर मत डालो, मैं ही लिख देता हूँ एक बार और, नहीं तो कंफ्यूज हो गए। 1/2 को अलग, cos 2 अल्फा बाई 2 को अलग, सिक्सटी डिग्री का कौन सा फॉर्मूला बोल रहे हो आयान? प्लस 1/2 प्लस कॉस ऑफ 2 अल्फा प्लस 240 डिग्री बाई 2 प्लस 1/2 कॉस 2 अल्फा माइनस 240 डिग्री। ये दुनिया तो क्लियर है, ये दुनिया में कुछ नहीं किया मैंने, इंडिविजुअल 2 से डिवाइड कर दिया है। और ये देखो जरा, ये 1/2 है, ये 1/2 और ये 1/2 मिलके कितना बन जाते हैं, 3/2 बन जाते हैं, ठीक है। एंड प्लस ये ये वाली टर्म, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म में मैं 1/2 कॉमन ले लेता हूँ। आई एम लेफ्ट विथ कॉस ऑफ 2 अल्फा प्लस कॉस ऑफ 2 अल्फा प्लस 240 डिग्री प्लस कॉस ऑफ 2 अल्फा माइनस 240 डिग्री। So this is 3/2 as it is, 1/2 as it is, cos 2 अल्फा as it is। जरा यहाँ पे देखना कौन सा फॉर्मूला लगा दिया, बताऊंगा नहीं, लिख के बताओगे आप लोग मेरे को ग्रुप में क्या, सॉरी चैट में, कौन सा फॉर्मूला लगा दिया, क्या नाम है उस फॉर्मूले का? कंपाउंड एंगल फॉर्मूला, cos a प्लस बी, एंड देन नाउ आई एम अप्लाइंग cos a माइनस बी। cos a माइनस बी इज cos a cos b प्लस sin a sin b। कुछ कैंसिल दिख रहा है, चमक रहा है? क्या कैंसिल करोगे? ये दोनों कैंसिल कर दूं ना एज इट इज, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं तुम लोगों को। 3/2 को एज इट इज छोड़ दूं, 1/2 को एज इट इज छोड़ दूं, cos 2 अल्फा को भी छोड़ दूं,
ट्वाइस cos 2 अल्फा cos 2 40 डिग्री लिख दूं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, दोनों सेम है तो ट्वाइस लिख दिया। अच्छा cos 2 40 डिग्री की वैल्यू फटाक से लिख के बता दो चैट बॉक्स में मेरे को, जिसका डाउट है। cos 2 40 डिग्री सर ने टेबल बनाई है और बोला था याद रखो। ग्रंथ, दिस इज टाइम टू रिवाइज योर नोट्स, द वैल्यू गिवन बाय यू इज रॉन्ग। कितना भाई लोग, कोई बताएगा मेरे को सही वैल्यू? -1/2 आएगी, प्लस नहीं आएगी भाई, सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में घूम रहे हो तुम लोग। ये 2 से 2 को उड़ा दूं, फिर ये पूरे cos 2 अल्फा और ये पूरी टर्म को उड़ा दूं, माइनस आएंगे, तो कितना आंसर आ जाएगा अब? 3/2 एज इट इज, 1/2 एज इट इज 0। ठीक है, सेवनटीन के बाद आऊंगा अब 18 पे। cos 24 डिग्री प्लस cos ऑफ 5 डिग्री प्लस cos ऑफ 175 प्लस cos ऑफ 240 डिग्री, 204 डिग्री माई मिस्टेक, प्लस cos ऑफ 300 डिग्री। तो भाई लोग थोड़ा सा सोचो, दिस एंड दिस विल कैंसिल आउट, क्यों कैंसिल होगी थोड़ा सा फाइंड आउट करो। दिस एंड दिस विल कैंसिल आउट, यू आर लेफ्ट विथ ओनली cos 300 डिग्री, जिसकी वैल्यू तो आपको पता ही होगी। हाँ जो चलेगा, कंपाउंड एंगल लगा के स्क्वायर कर, थोड़ा लेंदी जाएगा, चलेगा। इनफैक्ट वो डिफैक्टराइजेशन से भी हो जाएगा, फैक्टराइजेशन से, ये ठीक है। 18वां वाला जिसका भी डाउट था, बड़ू 19th वाले क्वेश्चन पे, 19 भी पूछा गया है। 19 से cos स्क्वायर 48 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 12 डिग्री। तो एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने कंपाउंड एंगल्स में, जिसको था cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, जरा बताओ तो क्या था? cos ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी। फॉर्मूले याद रखना बेटा, ये फॉर्मूले नहीं याद रहोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। फोर्टी एट प्लस 12, 48 माइनस 12, cos 60 डिग्री, cos 36 डिग्री, 1/2 √5 माइनस 1/, √5 प्लस 1/4। क्लियर है, आंसर मैच हो जाएगा। यस अयान बोलो। सर ये कौन सा फॉर्मूला है? कंपाउंड एंगल के तो वो वाला है ना, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, वो राइट, सब उसके टाइप का बाद है में ना। वो 4 फॉर्मूले लिखाने के बाद में और भी फॉर्मूले लिखाए जाते हैं। अगर नहीं किया तो देखना इन चैप्टर 2 में क्वेश्चन नंबर 3rd या 4th है यही फॉर्मूला, इसको प्रूफ ही करना है फॉर्मूले को। सर ये बस यही फॉर्मूला है कि ऐसे टाइप का और भी कोई है? एक है, दोनों साइन का है, अरे ठीक है सर। दोनों साइन आप का है दोनों। आप लिख सकते हो क्या हाँ मैं प्लीज? लिख देता हूँ, एक फॉर्मूला तो मैंने लिख दिया, एक और लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, हाँ यहीं ठीक पे है। लिख रहा हूँ मैं। ओके ओके। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी। दोनों हाथ इन चैप्टर खोलोगे ना तो इन चैप्टर में प्रूफ के लिए दिया गया है, फॉर्मूले में नहीं दिया गया है, बट इन चैप्टर 2 में दिए हुए हैं दोनों सर ये एज ए प्रूफ। फैक्टराइजेशन टाइप है क्या?
नहीं, फैक्टराइजेशन ही कंपाउंड एंगल से प्रूफ हो जाएंगे ये। आरएचएस से एलएचएस में चला जाएगा, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा के। इसको कंपाउंड एंगल के अंडर ही लिखूं ना मैं? हाँ, कंपाउंड एंगल के अंडर ही लिख। ठीक है सर, और थैंक यू। याद रखो ये दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है ना। हाँ हाँ। क्वेश्चन नंबर 20। आपने प्रूफ ऑलरेडी किए हैं। इफ यू हैव डन इन चैप्टर 2 देन यू हैव ऑलरेडी डन दिस 2 क्वेश्चंस, बट रिमेंबर देम एज ए फॉर्मूला एज वेल। Question number 20 says, if sine alpha plus sine beta is equal to A and cos alpha minus cos beta is equal to B, you need to find out the value of tan of alpha minus beta by 2. तो ठीक है, this I can write it like twice of sine alpha plus beta by 2 into cos of alpha minus beta by 2 is equal to A. ठीक है, ये वाली ये हो गई। और इस वाली को क्या लिख सकता हूं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इक्वल टू बी कॉस सी माइनस कॉस डी ट्वाइस ऑफ साइन ऑफ सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन ऑफ डी माइनस सी बाई टू, है ना। डिवाइड बोथ ऑफ देम। इफ वी डिवाइड बोथ ऑफ देम वी विल गेट, बोथ ऑफ देम की जगह इसको नाम दे दो आप 1, इसको नाम दे दो आप 2 एंड डिवाइड 2 बाई 1। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दिया जाए, ट्वाइस साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2। और यहाँ पे मैं साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 लिख रहा हूँ, बट मैं लिख रहा हूँ तो कीप इन माइंड ये माइनस बाहर निकाल रहा हूँ। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने ये एंगल में चेंजेस किया है। बीटा माइनस अल्फा की जगह मैंने अल्फा माइनस बीटा लिखा, और आपको पता है साइन माइनस थीटा कितना होता है, प्लस साइन थीटा, सॉरी साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, इसीलिए ये माइनस को बाहर लाया गया है। और नीचे है 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू ए बाय इज इक्वल टू बी बाय ए। अब क्या क्या कैंसिल हो रहा कर दो, दिस 2 विल कैंसिल आउट विद दिस 2, this cos alpha plus beta by 2 is cancelled out with this cos alpha plus beta by 2. We are left with 10 alpha minus beta by 2 in the LHS side and minus b by a in the RHS side. माइनस साइन को इधर उठा के लेके आ गया, you will get your answer probably minus b by a option B. क्लियर है? तो कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए ना जिसमें अल्फा माइनस बीटा को निकालना है, तो आपको इस तरीके से प्रोसीड करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 21 टू 25, 22, 24 बहुत ज्यादा डिमांड में है। 22, 24, 22, 24, 25 भी आ गया है। अब लोग देखेंगे क्या, रहे अभी तो 21 और 23 नहीं लिखा सर ने, ये आ गया 23। कोई 21 वाला एक तो छुड़वाओ यार, कम से कम। आ गया, गुड, उम्मीद थी मुझे। क्वेश्चन नंबर 21। चलो बढ़ते हैं आगे। 1 माइनस 2 अल्फा बाय 4 प्लस थीटा, तो ये जो है ना, ये मेरे को इस टाइप से दिख रहा है। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ऑफ ए कितना होता है, कॉस ऑफ 2 है, डायरेक्ट फॉर्मूला है। कॉस ऑफ ट्वाइस ऑफ पाई बाय 4 प्लस थीटा, कॉस ऑफ पाई बाय 2 प्लस 2 थीटा, 2 अंदर मल्टीप्लाई हो गया, माइनस साइन ऑफ 2 थीटा, कॉस पाई बाय 2 प्लस 2 थीटा इज माइनस साइन 2 थीटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22। Question number 22 is cos alpha plus cos beta is given to you. Cos alpha plus cos beta is equal to 0.
sin alpha plus sin beta is equal to 0 and cos 2 alpha plus cos 2 बीटा की वैल्यू अपन को निकाल के देनी है। स्क्वायर करता हूं और सब्सट्रैक्ट कर देता हूं। स्क्वायर करता हूं और सब्सट्रैक्ट कर देता हूं। कैन आई डू दिस? cos अल्फा cos बीटा स्क्वायर माइनस sin अल्फा sin बीटा स्क्वायर इक्वल टू 0 माइनस 0। cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस 2 cos अल्फा बीटा 2 cos अल्फा cos बीटा माइनस sin स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर बीटा माइनस 2 sin अल्फा sin बीटा। थोड़ा सा देखोगे, मैनेज करता हूँ इसको। cos स्क्वायर अल्फा, you cannot use componendo and dividendo. You can use componendo dividendo when there is an equation is involved, and LHS and RHS दोनों में if you are doing the same thing, then you can apply. cos alpha cos beta minus of sin alpha sin beta is equal to 0। तो भाई लोग ये अब आपको दिख ही रहा होगा, cos 2 अल्फा होता है, ये भी आपको दिख ही रहा होगा cos 2 बीटा होता है, और ये भी आपको दिख ही रहा होगा cos अल्फा प्लस बीटा होता है। दैट्स वाई वी सब्सट्रैक्ट बेटा। आई थिंक ऑप्शन मैच हो जाएगा आपका 20 सेकेंड का। बोलो। सर मेरे को 22 वाले में सेकंड स्टेप में क्या किया मेरे को नहीं समझा। स्क्वायर किया, नेगेटिव क्यों डाल दिया फिर? स्क्वायर किया, नेगेटिव सब्सट्रैक्ट कर दिया भाई मैंने, दोनों इक्वेशन बोला ना। दिस इज वन, दिस इज सेकेंड, वन का स्क्वायर किया और सेकेंड के स्क्वायर से उसको सब्सट्रैक्ट कर दिया। स्क्वायर करने की क्या जरूरत थी? क्योंकि फॉर्मूला नहीं बनता ना भाई, ये फॉर्मूला बनाना पड़ेगा ना। देखो cos 2 अल्फा इजिली आ गया यहाँ से, यहाँ देखो। अच्छा, इसीलिए। मितुल सर समझेगा कैसे कि दोनों के स्क्वायर का सब्ट्रैक्शन लेने का है? cos 2 अल्फा और cos 2 बीटा दिख रहा है ना देखो यहाँ से, जो तेको प्रूव हाँ। करना है इसमें cos 2 अल्फा और cos 2 बीटा दिख रहा है देखो। तो अब cos 2 अल्फा cos 2 बीटा लाने के लिए इन दोनों इक्वेशन में क्या करेगा, तो मैं बोलूंगा cos स्क्वायर से sin स्क्वायर सब्सट्रैक्ट करता हुआ मिलेगा और cos स्क्वायर बीटा से sin स्क्वायर बीटा मिलेगा, तो मेरे को ये दोनों टर्म मिल जाएंगे, और वो जब स्क्वायर करके सब्सट्रैक्ट करूंगा तो मिल जाएगा। इसीलिए मैंने किया, जस्ट ऑब्जर्वेशन। सब्सट्रैक्ट इसीलिए किया क्योंकि फिर यार वो ऐसा है कि जो मुझे चाहिए cos 2 अल्फा cos 2 बीटा वो मिल जाएंगे, दैट्स व्हाई सब्सट्रैक्टेड देम। क्वेश्चन नंबर 23, 10a गिवन है तुमको -1/2, 10b गिवन है तुमको -1/3, तो मेरे को 10a प्लस बी मिल जाएगा। 10a प्लस बी मेरे पास आ जाएगा 10a। बहुत नोन पैटर्न है बेटा, ये याद रखना। आपको जब असाइनमेंट मिला है उसके अंदर भी मिले हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, आपको a प्लस बी की वैल्यू निकालनी थी, तो a प्लस बी को लाने के लिए मैंने क्या किया, तो मैंने 10a प्लस बी को यूज कर दिया। जस्ट दिस इज अ सिंपल फॉर्मूला। सो दिस इज 10a प्लस बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे, 10a की जगह -1/2 -1/3, 1 -1/2 इंटू 1/3, दोनों माइनस माइनस प्लस हो गए। सो आप एलसीएम लोगे तो यू आर लेफ्ट विथ 6 -3 -2 द होल डिवाइडेड बाय 6 -1/6। ये 6 से 6 उड़ा। You will observe this is -5 divided by 5. It means 10 of a plus b कितना आ गया। बहुत कॉमनली यूज होती है ये चीज कि अगर 10 है 10b या साइन बी देके रखा हुआ एंड दे आर आस्किंग फॉर a प्लस बी या a प्लस 2b, देन यू हैव टू यूज दिस काइंड ऑफ मेथड। अब 10a प्लस बी इक्वल टू माइनस है, तो देख लो a प्लस बी किसके बराबर होगा भाई, π/4 के बराबर नहीं होगा, 3π/4 के बराबर होगा, 5π/4 के बराबर नहीं होगा। 5π/4 पे पॉजिटिव होता है, देयरफॉर ऑप्शन इज बी, है ना। बी वाले ऑप्शन पे अगर a प्लस बी आपके पास हो गया 5 नहीं 3π/4, सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा 3π/4।
5 पाई बाय 4 इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, 10 पॉजिटिव. पाई बाय 4 इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. तो पहला ऑप्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, दूसरा ऑप्शन सेकंड क्वाड्रेंट का है, तीसरा ऑप्शन थर्ड क्वाड्रेंट का है. फर्स्ट और थर्ड में 10 पॉजिटिव होता है, तो ऑप्शन बी में 3 पाई बाय 4 पे 10 जो है वो होता है -1. 24 साइन 3 थीटा माइनस कॉस 3 थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कितना? तो इसमें क्या करते हैं, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला लिख देता हूँ. 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा माइनस 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 साइन थीटा, और डिनोमिनेटर को बिल्कुल भी नहीं छेड़ता हूँ, साइन प्लस कॉस लिखे रहता हूँ. ये तो लिख सकता हूँ ना, इसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं. सो मैं 3 साइन प्लस 3 कॉस को साथ में लिख देता हूँ, माइनस 4 साइन क्यूब माइनस 4 कॉस क्यूब को अलग पटक देता हूँ, साइन प्लस कॉस कर देता हूँ, प्लस 1 को अलग पटक देता हूँ. 3 कॉमन ले लेता हूँ, साइन प्लस कॉस बचेगा, और आप यहाँ भी ऑब्जर्व करो -4 कॉमन ले लेता हूँ, साइन क्यूब प्लस कॉस क्यूब बचेगा, डिवाइडेड बाय साइन प्लस कॉस बचेगा, प्लस 1 एज इट इज रहेगा. 3 एज इट इज, साइन प्लस कॉस एज इट इज, -4 एज इट इज, a प्लस बी, a प्लस बी, a स्क्वायर, साइन क्यूब प्लस कॉस क्यूब इज साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर माइनस साइन कॉस, the whole divided by sin plus cos plus 1. Sin plus cos common from the numerator, both the terms. I am left with 3 minus 4, 1 minus sin into cos. अब बोलोगे 1 कहाँ से आया, तो ये थोड़ा समझो कि उधर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिखा था, उसको मैंने 1 लिख दिया है. क्लियर? तो ये बढ़िया से उड़ेगा इसके साथ, और ये बचेगा 3 माइनस 4 प्लस 4 साइन इंटू कॉस प्लस 1. तो ये +3 -4 प्लस 1 मिलके हो जाएगा 2 साइन इंटू कॉस, और एक 2 एक्स्ट्रा, तो दिस इज 2 इंटू साइन ऑफ 2 थीटा. 24. तो साइन 3 थीटा कॉस 3 थीटा को लगाया फॉर्मूले में, और देन फैक्टराइज्ड, टेकन कॉमन एंड प्रूव्ड. हाँ चलेगा, फैक्टराइजेशन भी चलेगा बेटा. Question number 25 now. Question number 25. Question number 25 says that cos of A is equal to m cos of B. I can write it like cos of A by cos of B is equal to m by 1. अब अप्लाई कर दूंगा मैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो. क्या बचेगा? cos A प्लस cos B, cos A माइनस cos B, m प्लस 1, m माइनस 1. ठीक है. Twice of cos of A plus B by 2 into cos of A minus B by 2 in the numerator
ट्वाइस ऑफ साइन ऑफ a प्लस बी बाई टू डिवाइडेड बाय साइन ऑफ b माइनस a बाई टू, उल्टा आएगा यहाँ पे m प्लस वन डिवाइडेड बाय m माइनस वन। ये 2 को उड़ा दिया ये 2 से, तो ये आ जाएगा cos ऑफ a प्लस बी बाई टू को बिल्कुल नहीं छेड़ा, cos ऑफ a माइनस बी बाई टू को भी नहीं छेड़ा, साइन ऑफ a प्लस बी बाई टू को भी नहीं छेड़ा, एंड साइन ऑफ b माइनस a बाई टू को छेड़ के a माइनस बी बाई टू लिखा और उसकी जगह एक माइनस साइन बाहर लिख दिया। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा होता है, दैट्स व्हाई। अब बस क्लियर है भाई, अपन को जितने भी ऑप्शन है सब में कॉट और टेन इन्वॉल्व है, तो भाई ठीक है कॉट और टेन ले लो। तो ये कॉस डिवाइडेड बाय ये साइन कॉट में हो जाएगा और a प्लस बी में कॉट है, तो ये कॉट ऑफ माइनस ऑफ कॉट ऑफ a प्लस बी बाई टू है। और डिनोमिनेटर में ये वाले बेचारे दोनों को, डिनोमिनेटर में साइन बाय कॉस है तो इसको लिख देते हैं टेन ऑफ a माइनस बी बाई टू। ये आपके पास m प्लस वन डिवाइडेड बाय m माइनस वन, उन्होंने इसको भी नहीं छोड़ा, इसको भी इधर उधर किया है, तो हम इसको कर देते हैं कॉट ऑफ a प्लस बी बाई टू एज इट इज। और यहाँ पे थोड़ा सा देखना, मैं इसको m प्लस वन लिख देता हूँ, m माइनस वन लिख देता हूँ, और 10 जो है उसको b माइनस a बाई टू लिख देता हूँ। अब क्यों लिख देता हूँ ना, तो ये थोड़ा ध्यान देना, ये माइनस साइन जो है ना, ये माइनस लेना ही नहीं था शुरू में, बट ठीक है ले लिया है। तो 10 ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू माइनस 10 थीटा होता है, तो दिस वाला नेगेटिव साइन इसको इसके साथ मिला के 10 b माइनस ए लिखा जा सकता है ना, माइनस 10 ऑफ थीटा 10 माइनस थीटा, तो b पॉजिटिव हो गया, ए नेगेटिव, यू विल गेट योर ऑप्शन। Twenty-sixth we are not going to discuss, till only 25 today we need to discuss, right? सर ने बोला था 1 to 25 आई थिंक डाला था ना सर ने ग्रुप पे। चलो डन है। यस अयान बोलो। सर एक मिनट स्क्रीन थोड़ा छोटा करो ना, अभी मेरे को याद नहीं आ रहा कौन सा क्वेश्चन था, लेकिन मेरे को कुछ डाउट था, थोड़ा लेफ्ट लेफ्ट सर, और देख सकते। या द लेक्चर इज ओवर, यू कैन लीव। सर थोड़ा लेफ्ट करो। हाँ अरे यार अभी याद ही दिख ही नहीं रहा है मेरे को, क्वेश्चन नंबर नोट करना चाहिए था सर, सॉरी, लेकिन और लेफ्ट लेफ्ट वो क्वेश्चन, वो आंसर की पहली लाइन ग्रीन से लिखी है, इतना याद है बस मेरे को, बस ओनली पहली लाइन ग्रीन से लिखी है, और लेफ्ट में ये यही से स्टार्ट हुआ है ये वाला, हाँ यही है बस, ये एक। चलो एक बार ट्राई करना, फिर नहीं आए तो फिर देख। हाँ ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट अभी आप बाकी के 25 का लोगे तब मैं पूछ लूंगा अगर नहीं आया ठीक तो। ठीक बाय सर, थैंक यू। है। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो बेटा, जिसको लेना है। मैं एक बार और सारा शुरू से आपको दे रहा हूँ, बस यहीं तक सिंपल जो जहाँ है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 11 to 15 ऊपर है, 16 to 20 नीचे है, तो दिस इज 11 to 20।
1 to 5 ऊपर है, 21 to 25 नीचे, और आगे मैं कर रहा हूँ। चलो देन, बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।